षष्ठी पर बरसती। हेलो स्वामी जी। नमस्कार जी, जय श्री गंगा माँ। जय श्री गंगा माँ। मेरे साथ दोनों साधुजन बैठे हुए हैं। स्वामी जी, आई वांट टू फर्स्ट आस्क यू दैट why did you come to Gangotri? Okay. So I came to Gangotri today because this is Akshaya Tritiya, most auspicious day when sun and moon are in state of exaltation. And this is the very special day when Ma Ganga returns from her winter home in Mukwa to come to Gangotri to open the temple in Gangotri. And all of nature is rejoicing and happy that Ma Ganga is coming back to Gangotri. And so I wanted to be part of this very auspicious celebration. It's very, very blissful. Okay, thank you very much, Swamiji. I want to ask you that what does Mother Ganga means to you? What does Mother Ganga means to you? Mother Ganga means everything because she is protector of the whole world. Her blessing spreads to the whole world, and it's such a joy to be at her banks on this holy day and experience this blessing. She really does provide huge protection for the entire world, and this is a time when the world can really use such protection. So this is why I wanted to be part of this special day today. Okay, Swamiji. I want to again ask you a question that how was Ganga changed your life? Wow. The first time I met Ganga was in Haridwar, and I remember going to the Aarti in the evening. I had never been to such a thing. My country is USA, so I hadn't ever experienced something like that. And I went to the Aarti that evening, and when the singing was going on, I remember tears coming down, some awakening, some opening of the heart. So Ganga is very special in that way. I feel very close to Ganga. Okay, Swamiji. Again, a question for you. That what message do you have for people about Ganga? Message for people about Ganga, I think message is just that India has very deep spiritual heritage of great rishis, great saints. I am a disciple of a very great Indian saint, Maharshi Mahesh Yogi, and all of these great things came out of India. And Ganga is one of the very special things about India. And I think all people in India should just remember that Ganga is part of their very great spiritual heritage. Okay, tell me about your spiritual journey in India. Okay, when I was a young boy, I learned something from my Guruji. I learned transcendental meditation, which is very simple kind of meditation where one can sit with their eyes closed and enjoy Atma, enjoy the inner bliss, enjoy peace inside. And I became very captivated with this experience, and I went on to become a teacher of this kind of meditation. And then at one point my Guruji said a small group of us could come to India if we wanted to and just do our sadhana here in this most holy place in Uttarakhand, Devabhumi. So really this has been my spiritual journey, and I'm very, very grateful to be part of this beautiful, beautiful culture of India here in Uttarakhand. Very, very thankful to you, Swami जी. अब मैं आपको जो एक और संत हैं, माँ गंगा की कृपा से लंबे समय से गंगोत्री क्षेत्र में निवासरत है. प्रणाम स्वामी जी. प्रणाम अस्तु, धन्यवाद. First, I want to ask you your name and your spiritual journey on the bank of Ganga. मेरा अंग्रेजी नाम डगलस है, लेकिन मेरा संस्कृत नाम आत्मानंद. स्वामी आत्मानंद. हाँ जी. यस, एंड क्योंकि अभी भारत हमारा घर है, अमेरिका, यूएसए आजकल बहुत ज़्यादा समस्या दिक्कत है, एंड भारत का ज्ञान सबसे अच्छे ज्ञान है. So, and Ganga, flow of knowledge.
गंगा ज्ञान के लिए। सो आज अक्षय तृतीया के लिए हमारा सेलिब्रेशन है गंगा ज्ञान। बहुत अद्भुत बात कही गुरुदेव आपने। पूज्य स्वामी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके मन में कैसे आया कि भारत आके हम लोग साधना करें या हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट करें? हाँ जी, एंड हिमालय सबसे अच्छा जगह योग साधना के लिए जी। बहुत हजार साल योगीज एंड ऋषिज यहाँ है साधना में। एंड सो गंगोत्री आश्रम साधना के लिए और भी यात्री के लिए सिर्फ गंगा का दर्शन, योगी के लिए सच्चिदानंद अंदर है, लेकिन यहाँ यात्री भी सच्चिदानंद बाहर है नदी में। सो दोनों योग साधना और भक्ति दर्शन यहाँ खासकर आज। स्वामी जी, मैं फिर से आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा कि क्या गंगा सिर्फ एक नदी है या गंगा कुछ और है आपके शब्दों में? हाँ जरूर, क्योंकि आत्मा सब कुछ में, आत्मा एवरीवेयर है, लेकिन गंगा में कुछ खासकर लॉज ऑफ नेचर, खासकर देवता है। एंड सो वे देवता यहाँ केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री देवता बहुत जगह अलाइव है, जागृत है। सो हम साथ देवता से हैं यहाँ जी। जैसे भारत में स्वामी जी मान्यता है कि गंगा मोक्ष की नदी है। हाँ, तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, क्योंकि ध्यान में हमारा स्ट्रेस, हमारा गलत सोचना जाएंगे। एंड सो यहाँ सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी प्यूरिफिकेशन के लिए, प्यूरिफाइंग द माइंड फॉर जीवन मुक्ति, फॉर हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, सबसे ऊंचा कॉन्शियसनेस, चेतना, ब्रह्मी चेतना यहाँ। अच्छा गुरुदेव, एक बात बताइए आप मुझे, एक प्रश्न है मेरा कि क्या आपको ऐसा लगता है कि सनातन संस्कृति आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए एक सही मार्ग है? हमारा गुरु जी महर्षि महेश योगी जब हम विश्वविद्यालय में अमेरिका में भगवती ध्यान हमने सीखा थे। एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंसेस आत्मा अंदर है। एंड सो अभी हम 50 साल भगवती ध्यान सीख रहे हैं। एंड 50 साल हो गए हैं? हाँ जी। Yes, it's great. एंड हमको बहुत पसंद। एंड सो अभी आजकल भारत सबसे अच्छा जगह सब कुछ के लिए। अगर बिजनेसमैन, अगर परिवार, पितृ, सब लोग अध्यात्म है यहाँ। स्वामी जी, मैं आपसे ये संदेश लेना चाहूँगा कि भारत की जो यंगस्टर्स है, भारत की जो युवा पीढ़ी है, उनको जो आज पश्चिम को लेके ज़्यादा उत्साहित होते हैं और अपनी जो मूल है, अपना जो मेन है, उससे दूर होते जा रहे हैं, तो कुछ संदेश आप देना चाहेंगे उन बच्चों को? क्षमा कीजिए, मेरी हिंदी ठीक नहीं है। ओके, आई वांट टू आस्क यू दैट प्लीज गिव मी अ मैसेज ऑफ यंगस्टर्स ऑफ इंडिया दैट इंडियन इज ए स्पिरिचुअल पावर हाउस। बिल्कुल। दूसरे देश आप देख सकते हैं कि दूसरे देश बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जो बहुत ज़्यादा समस्या है। एंड युद्ध है, बहुत ज़्यादा युद्ध है अमेरिका में। एंड भारत, अमेरिका बहुत आदिभूत है। भारत में आध्यात्म और आदि देवता है। एंड अगर आध्यात्म और आदि देवता का एनलाइवनिंग जागृत है तो कोई समस्या नहीं होंगे। एंड सिर्फ और लोग और यात्री और भक्त और योगी और ध्यान वाले भारत से
भारत will lead the world. भारत सबसे अच्छा देश होंगे, अच्छे देश होंगे. लेकिन ये ट्रेडिशन, आपका ट्रेडिशन यहाँ है. So और भारत लोग चारधाम चल रहे हैं. Okay, I want tell that Indian traditional and Indian religion, हाँ जी. especially Sanatan Dharma, is the हाँ जी. greatest way to moksha the humans. बिल्कुल. Okay, हाँ. okay. Bilkul. I want to ask you again a simple question: that how long your journey on the bank of Ganga in Himalaya area? Well, एक बात है कि गंगा बाहर है यहाँ, लेकिन गंगा भी अंदर है हमारे दिल में. So अगर कोई आदमी यहाँ आज नहीं है, लेकिन गंगा अंदर है, so हो सकता है कि गंगा ज्ञान के लिए है. So ज्ञान अंदर डेवलप हो सकते हैं. And जब हम विश्वलया में 50 साल के पहले भगवती ध्यान किया, 50 साल हम रोज सुबह और शाम को भगवती ध्यान चल रहे हैं, कर रहे हैं. And this fulfillment, this being here आज आपसे हमारा fulfillment है. And पहला आना जाना भारत को, अमेरिका को, यूरोप को आना जाना, but आजकल भारत सबसे अच्छा जगह साधना, योग साधना के लिए, भक्ति के लिए. देखिए कितना बड़ा संदेश है कि भारत पूरे विश्व में सबसे प्रमुख वो जगह है जो मनुष्य को मोक्ष के द्वार पर ले जाता है. और हमारे साथ आज दो ग्रेटेस्ट योगी जो लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं गंगा के तट पे और भागीरथी के तट पे, आप दोनों का बहुत बहुत साधुवाद. हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय गंगा मैया की, बोलिए गंगा मैया की जय.